that is time, distance, and speed. So the basic formula everybody knows, that distance, that is equal to speed into time. This is the basic formula of time, speed, and distance, the topic that we have today. Everybody is aware about this topic, और नया नहीं है, हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, and we know if we increase the speed, we'll take lesser time to reach our distance, destination, and if we decrease the speed, the time taken will be more. The same grounds we have this topic. The first part, that we have conversion of units. Now how do we convert the units? Now what are units? Units are basically the parameters in which we calculate the speed or the time or the distance. Now speed is generally expressed in terms of meters per second or kilometer per hour. किलोमीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट भी करवाया जा सकता है. डिस्टेंस एवरीबडी नो, मीटर या किलोमीटर में होगा, माइल्स में होगा. And time will be in hours, minutes, or seconds. So there are some basic rules, basic formulas that we have to start with. 1 hour equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. That means 60 minutes equal to 3600 seconds. 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 mile is equal to 1.6 kilometer, 1 foot is equal to 3.3 meter. Now 1 kilometer per hour, that is equal to 5 by 18 meter per second. ये कैसे आया? You should know the conversion also. Now 1 kilometer per hour, that means you can write that as 1000 meter divided by 3600 seconds. Now if you cancel them out, the table of 2 you'll get 5 by 18. ऊपर यूनिट मीटर है, नीचे यूनिट सेकंड है, तो आई गेट मीटर पर सेकंड. और अगर 1 मीटर पर सेकंड होगा तो इनवर्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 by 5 kilometer per hour. So they have given you both these things here. The first example that we have, it says a person walks 1200 meters between his home and office in 20 minutes. So here is the home and here is the office. The distance between them, they are saying, is 1200 meters. It takes 20 minutes. Now what is the speed in kilometer per hour? So first of all, convert this 1200 into kilometers, that is 1.2 kilometer. Divide by time. Now time is 20 minutes, matlab 20 by 60, that's 1 by 3 hours. That means the answer is 3.6 kilometer per hour. That's what they asked. Is this clear to us? Clear है हमें ये? Yes, sir. Dhananjay, Nirmala, is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next question says Mitu goes from Nasik to Manmad in 4.5 hours at a speed of 20 meter per second. Now what is the distance? Now distance का formula क्या होता है? Speed into time. मुझे बताना है meters के अंदर. Now speed is given to meter, 20 मीटर पर सेकंड. टाइम गिवन है मुझे आवर्स में, तो आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर. टाइम हो गया 4.5 आवर्स. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. Dot we can replace it by 10. 45 into 90, 60 into 60, 3600. So 36 into 9, that is 324. So this is the answer in meters. So you have to make sure जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपका आंसर उसी यूनिट में आए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. क्लियर है हमें सिंपल बेसिक्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. The next question says, in how much time will a rabbit make 300 leaps if it makes 25 leaps in 2 minutes? So 25 leaps in 2 minutes
One leap is in 2 by 25 and 300. That is into 300. So 25 into 1, 250. That means 12 into 2, 24 minutes. That is the answer I get. I think quite easy, बहुत basics हैं, कुछ भी नहीं है, just to make you sure कि बच्चा basics miss ना करे. That's why this is such a small introduction of the basic concept. बहुत easy दिया हुआ है आपको. So next we have the relation. हम direct variation, inverse variation टॉपिक किया हमने. तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट रिलेट करते हैं. दैट मीन स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा. स्पीड कम होगी, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. डिस्टेंस और टाइम का भी डायरेक्ट रिलेशन है. डिस्टेंस ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा. डिस्टेंस कम होगा तो टाइम कम लगेगा. टाइम और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स बोले तो कि अगर टाइम ज्यादा होगी, स्पीड कम लगेगा, और टाइम कम लगाओगे तो मतलब स्पीड ज्यादा है. लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दैट. Sakshi travels 100 kilometers from New Delhi to Ghaziabad in 4 hours, returns back same route in 5 hours. What is the ratio of speed for the onward and return journey? तो फाइंड मत करो स्पीड, बिकॉज मुझे मालूम है डिस्टेंस दोनों बार सेम है. तो जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो उसका इनवर्स होगा. टाइम का रेशियो क्या है? जाते हुए लगते हैं 4 आवर्स, वापस में 5, तो 4:5. इसका मतलब स्पीड का रेशियो क्या होगा? दैट विल बी इनवर्स, 5:4. दैट इज द आंसर. सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए. क्लियर है अपने को ये? Yes, sir. Yes, sir. Now let's go further. Dhananjay, Vikram and Shreya simultaneously start moving towards each other on a 35-meter long road. When they meet, Shreya is 20 kilometers away from her start point. Let's say this is Shreya, this is Vikram. They are both moving towards each other. This is 35 meters long road. Shreya ने 20 किलोमीटर क्रॉस किया आउट ऑफ 35. दैट मींस विक्रम ने 15 क्रॉस किया. अगर विक्रम की स्पीड 12 किलोमीटर है तो श्रेया की स्पीड कितनी है? अब दोनों मिले तो सेम टाइम पे ही है. तो विक्रम ने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दैट इज 5/4 आवर्स में कवर किया. एंड श्रेया ने इसी टाइम में 20 किलोमीटर कवर किया. दैट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/4, that is 16 kilometer per hour. That is the answer to the speed of Shreya. Clear? Yes, sir. सर एक बार लास्ट स्टेप बताना जो आपने बताया. मैंने लास्ट स्टेप में ये किया, मैंने टाइम निकाला पहले. तो जो विक्रम है, his speed is 12 kilometer per hour and he walked only 15 kilometer. So 15/12 distance by speed, that is time. अब इसी टाइम पे श्रेया भी वहां पहुंच चुकी है, लेकिन वो 20 किलोमीटर मूव किया उसने इन स्पाइट ऑफ 15 जो विक्रम चला. दैट मींस श्रेया की जो स्पीड होगी, डिस्टेंस विच इज 20 डिवाइड बाय टाइम विच इज 5/4, दैट वी सोल्व्ड एंड वी गॉट द आंसर. ठीक है? यस सर. करने का दूसरा तरीका भी है, बिकॉज हमें मालूम है जो डिस्टेंस का रेशियो है वही उसकी स्पीड का रेशियो है. तो अगर मैं उस तरह से करना चाहूं तो जो इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा. तो डिस्टेंस का रेशियो है 20:15, दैट इज 4:3. तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा. और आपको पता है विक्रम ने चला है 12
if 3x equal to 12 km per hour, I can say 4x equal to 16 km per hour. So this is also another way to do it. The way you feel comfortable, you can take care of that. Is this clear to us? Yes, sir. सर पेपर में Yes, भी sir. इतने इजी आएंगे क्वेश्चंस. Let's look at the next one now. Example number 6. Traveling at 3 by 5 of the original speed, Jimmy reaches school by late by 10 minutes. समझ आ रहा है? In how much time does Jimmy normally reach school? अब देखो, मैं घर से चलता हूं स्कूल तक, डिस्टेंस तो सेम ही रहता है हर बार, डिस्टेंस चेंज तो नहीं होता. लेट्स से मेरा स्पीड जो है वो था x किलोमीटर पर आवर, तो अब मैं चल रहा हूं 3/5 x किलोमीटर पर आवर. पहले मुझे लगता था टी टाइम, टी आवर्स, अब मुझे लगता है t+10. अगर ये तो चलो मिनट्स में ले लेते हैं, t+10 ले लो अगर आप बोलते हो, और यू कैन टेक t+1/6 ऑल्सो. अब दोनों डिस्टेंस हैं तो घर से स्कूल तक के, दैट मींस xt should be equal to 3/5 into x t+10. X to x cancelled. If I cross multiply, I get 5t, that is equal to 3t plus 30. Then I get 2t, that is equal to 30. That means t is equal to 15 minutes. That is the answer what I get. Are we clear on this? Bonus class के बाद बता दो, कोई बात नहीं. Check that how did you do it. ऐसे नहीं आंसर मिलेगा. Look at the 7th one. करना तो 18 था ना वैसे जो आपने बोल के दिया. Example number 7. Pankti reaches office late every day by an hour. On a certain day, she travels faster by 20% and arrives only 45 minutes late. Same kind of question. If she wants to reach office by only 15 minutes late, what percent should she increase her speed? अब देखो, पंक्ति reaches office late every hour by an hour. तो लेट्स से उसकी स्पीड s है या x, जो भी लेना चाहते हो, एंड टाइम उसको लगता है t+1 hour. On a certain day she traveled faster by 20%, तो अब उसकी स्पीड हो गई 1.2s मल्टीप्लाइड बाय लगा 45 मिनट्स, मतलब t+3/4. आवर्स में ले रहे हैं टाइम को, पिछला क्वेश्चन मिनट से किया तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. अब उसको पहुंचना है लेट 15 मिनट्स लेट, मतलब t+1/4 टाइम लेना है उसको. 35 45 3/4 हो गया ना. Now you have to find out the speed. अब दोबारा से हम वही चीज कर सकते हैं, सारे इक्वल हैं आपस में, they all are equal. So if I put these three equations equal, what do I get? S into t+1, that is equal to, इसको हम यहीं पे कट कर लेते हैं, why to waste time. S से S कैंसिल हो जाएगा. If I put both of them equal, I'll get t+1, that is equal to 1.2t plus 0.9. That means 0.2t is equal to 0.1. That means t is equal to 1/2 hour. Now अगर 15 मिनट लेट पहुंचने हैं तो t की वैल्यू पुट करो 1/2 plus 1/4, s into t+1, that is s. 1 plus 1/2 is 3/2. That is equal to नई वाली स्पीड h dash multiplied by 3/4. t plus 1/4 is 3/4 हो जाएगा. 3 से 3 cancel. This is 2, this is 2, this is 1, sorry, cancel out.
दैट मींस नई जो स्पीड होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ s. अब जो नई स्पीड है मेरी डबल हो जानी चाहिए, मतलब 100% इंक्रीज होना चाहिए. दैट इज हाउ यू गोना डू इट. मेरे समझ में आया व्हिच पॉइंट? t + 1 के इक्वल टू में आपने 1.2 t तो ये आगे इससे मल्टीप्लाई हो गया जहां जहां पर t है वहां पर 1/2 रख दो आप. अब आपने इसको और इसको इक्वल रखा है, तो 0.9 कैसे आया? मल्टीप्लाई करके 1/2 into 3/4. ठीक है हाँ जी अक्षर, यू हैव अ क्वेश्चन? सर समझ नहीं आया ये वाला। क्या कहाँ से समझ नहीं आया बताओ मेरे को. सर वो इक्वेट करके कैसे किया, मतलब कैसे आप इक्वेट फिगर्स करके देखो. s into t plus 1 that is equal to 1.2 s into t plus 3/4. यही इक्वेशन है बेटा हमारी. यस सर, s से s कैंसिल होगा. यस सर। ये t अच्छा plus 1 ठीक है equal सर। to 1. ये तो बेटा कैलकुलेशन है, समझ तो कंसेप्ट होता है. नहीं आया हाँ समझ गया। और जब सर अगर इसमें कैलकुलेशन समझ नहीं बोलता आई तो मतलब आप करके देखो उसको. सिंपल सा फंडा है बेटा. ठीक है नहीं सर समझ आता समझ तो गया। पूछो इमीडिएटली मुझसे. ओके सर, अगर ये बोलते कि उसे ऑन टाइम पहुंचना है तब किससे करते? लाइक पहले तो हम 1/4 कर रहे थे, लेकिन ऑन टाइम पहुंचना है तो किससे करेंगे? अगर क्या और लेट पहुंचना है मतलब, ऑन टाइम पहुंचना है। अगर ऑन टाइम पहुंचने तो हाँ इसी जी। इक्वेशन को लिखते s हम्म इंटू t plus 1 हो जाता इंटू 3/2. दैट इज इक्वल टू नई स्पीड और टाइम है ओनली 1/2. s ओके। डैश थ्राइस ऑफ s. अब ऑन टाइम पहुंचना है तो स्पीड थ्राइस कर देनी चाहिए उसको. तो मतलब कितने परसेंट से बढ़ाएंगे इसमें? आप देखो, ये तो सिंपल सा ठीक है ठीक फंडामेंटल है। पूछने की बात ही हाँ नहीं जी है. हाँ जी। ओके सर ठीक है, समझ द गया। इंक्रीज विल बी बाय 200%. हाँ जी, बस कंफर्म एक करना था। s आपके पास है, 3s बनाना है तो 2s इंक्रीज हुआ ना बेटा. हाँ जी सर, आगे समझ। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज. सर एक बार ये बताना, लास्ट वाली s into 3/2 s1 क्यों लिया? कौन सी वाली बेटा? जो आपने यहाँ लास्ट में बनाई थी, ड्राइव करी है, हाँ यहाँ पे कह रहे हो, पिछले पेज पे कह रहे हो? इस दोनों में सेम ही है ये लास्ट वाली. अच्छा आप कह रहे हो सेकंड क्यों नहीं ली? नहीं, जो आपने s into 3/2 वाली इक्वेशन, वो वाली एक बार बताना. t की वैल्यू पुट की है इसके अंदर. और इक्वल टू में क्या पुट करा आपने? थर्ड इक्वेशन जो मुझे निकालना था दैट वाज s डैश. ठीक है. ओके. Try the example number 8. Just see to that once. The eighth question that we had, निर्मला का तो हो गया, बाकी आप लोग, धनंजय आपका भी नहीं हुआ. सर होने वाला था, मेरे को आ गया था समझ. वेरी गुड. अक्षत आप देखो ध्यान से. Two buses are traveling on the same route at 60 km per hour and 100 km per hour. फास्टर बस ने कवर किया 20 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर वन. तो एक तो चल रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी जो बस है वो चल रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से. ये आगे है 60 वाली, 100 उसके पीछे है. नाउ कहते हैं फास्टर बस हैज कवर्ड 20 किलोमीटर मोर. अब देखो इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर. डिफरेंस कितना है? बिकॉज सेम डायरेक्शन में है तो 40 किलोमीटर का डिफरेंस है. एक घंटे में दे कैन मूव 40 किलोमीटर पर आवर. इतना दूर जा सकती है वो, हाँ जी सर। है कि नहीं? यस सर। लेकिन गई कितनी है? ओनली 20. 20 यस। तो दैट मीन्स एक्चुअल डिस्टेंस 20, स्पीड आपकी 40, टाइम हो गया हाफ एन आवर. ओके सिंपल. ठीक है सर। ओके गॉट दैट। था ही नहीं. हाँ जी ठीक है सर, समझ गया। Then try example number 9 now. Try it. ठीक है. Look at the next concept.
That is average speed. Now average speed क्या कहती है? The average speed, the formula for that is total distance traveled divided by total time taken. Basic formula this is. अगर आपका डिस्टेंस सेम होता है, फॉर एग्जांपल करनाल से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली, इन दैट केस यू कैन यूज अ फॉर्मूला आने जाने का। अगर एवरेज स्पीड निकालना है, दैट इज 2ab डिवाइड बाय a प्लस b, देन यू कैन स्किप द फॉर्मूला व्हिच इज द कॉमन वन, फिर आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ठीक है, वो दिखाई दे रहा सही? ठीक है। एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज में अगर हमने किया हो n अपॉन 1 by a plus 1 by b plus 1 by c and so on, that is the formula we are coming up with here. तो कहता है अगर टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड होता है अर्थमेटिक मीन। पहले केस में क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अब टाइम कांस्टेंट है, 2 घंटे 50 की स्पीड, 2 घंटे 60 की स्पीड, तो मेरा आंसर होगा 50 प्लस 60 बाय 2 55। यहां पर नहीं होगा अगर डिस्टेंस सेम है 50 और 60 में, तब आंसर होगा 2 इंटू 50 इंटू 60 बाय 50 प्लस 60। अब एग्जांपल करेंगे, देख समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 10, शताब्दी एक्सप्रेस कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस 150 पे, रिमेनिंग हाफ, मतलब हाफ हाफ इक्वल है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, फॉर्मूला चलेगा ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 इंटू 150 इंटू 120 डिवाइड बाय 150 प्लस 120, दैट इज 270, 3 into 9, 3 into 4, 3 into 3, 3 into 50, you get 100, 400 by 3. That is the average speed you get, 133.33 km per hour. So by using a simple shortcut, you could find out the answer because आपको पता लग गया था कि distance constant है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Look at the next one, सर 11th अगर one. इससे ना करना हो और नॉर्मल से करना हो फिर? तब भी कर सकते हो, बट आपको उस केस में डिस्टेंस नहीं मालूम, तो आपको एलसीएम लेके या XY लेके करना पड़ेगा, लेंथ हो जाएगा। ओके ओके सर। Look at the 11th one. A bus covers a distance of 320 kilometers, the speed of 80 km per hour. Then another distance of 200 kilometers, the speed of 50 km per hour. Now what is the average speed? अब distance अलग अलग है, टाइम भी नहीं बताया सेम है क्या नहीं है। सिंपल फॉर्मूला यूज करो जो आप कह रहे हो धनंजय, 320 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएंगे तो 380 डिवाइड बाय 80 4 आवर्स, एट 200 बाय 50 वो भी 4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हो गया 320 प्लस 200, दैट इज 520, सॉरी 400 डिवाइड बाय टाइम हो गया 4 प्लस 4 8। अच्छा टाइम कांस्टेंट है तो दे आर सेइंग कि आप दूसरा यूज कर लो चाहे फॉर्मूला, दैट इज आल्सो राइट, देन वो भी ठीक है। ये तो आपका लॉजिक हो गया। 8 इसमें दिया है ना टाइम कांस्टेंट है। हाँ दिया है ना आपने निकाला तो है, तो फिर 4 आवर्स 4 आवर्स, तो 320 प्लस 200 520 हो गया, 8 इंटू 6 48 65। चाहे इस तरह निकाल लो या जैसे आपको पता लगा कि 4 आवर्स टाइम इक्वल आ रहा है, यू कैन यूज a1 प्लस a2 बाय 2, स्पीड दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. 2 एग्जांपल हो रहे हैं, उसके बाद करेंगे, कल करेंगे रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट। आप ट्राई करके देखो, आई बिलीव यू गाइस मस्ट हैव बी एबल टू डू इट। ट्राई एग्जांपल नंबर 12। क्वेश्चन में 3 स्ट्रेचेस हैं एक्चुअली, 150 किलोमीटर की ईच। तो जो आपका हार्मोनिक फॉर्मूला चलता है मीन का, दिस इज द शॉर्टकट यू गोना यूज। अगर 2 होते तो जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था उससे होता है। अगर 2 स्ट्रेच होते इक्वल तो ये शॉर्टकट चल जाता, 3 के लिए चलेगा, 4 होते तो इसको सॉल्व कर लेते। मतलब दिस इज द बेसिक लॉजिक, इसके पीछे ये है सारा का सारा। एंड देन यू कुड मेक इट अप 4ABCD डिवाइड बाय ABC प्लस BCD प्लस CDA
प्लस AVD। हाँ अभी तो क्लास चल रही है अभी तो फिर आपका आंसर ये हो जाता है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Look at the number 13th. Try it once. इसको करने का बड़ा इजी तरीका है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वही होना है, टोटल डिस्टेंस। इटावा टू इलाहाबाद का टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको पहले तो। अब आपको पता ही नहीं डिस्टेंस है कितना, 30%, 35%, देन 20% एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता तो आप 100 ले लो, तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा 30, 35, 65, 85, ये 15 बच जाएगा। So you can take it like this also. When the distance is not given, you can use this formula also. The shortcut LCM ले सकते हो, लेना चाहो वो भी कर सकते हो। और अगर परसेंट दिया हुआ है तो स्ट्रेट अवे सिंपल 100 ले लो, इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। 30 डिवाइड बाय 10 डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, 35 डिवाइड बाय 5 डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 20 डिवाइड बाय 4 डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड रिमेनिंग 15 डिवाइड बाय 3 डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल टाइम आ गया आपका 20 आवर, डिस्टेंस आपने 100 माना हुआ है, एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। Is this clear? Excuse me, Yes, sir. sir. हाँ जी बेटा। सर वैसे ना इंडिविजुअली क्वेश्चंस तो क्लियर होते जा रहे हैं, बट जब सम अप होके आएंगे ना तब कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो कोई ट्रिक भी है इन सारी चीजों को मतलब आइडेंटिफाई करने की, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना? आप खुद ही तो कह रहे हो कि जब सारे मिलके करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। हाँ तो जी। ट्रिक तो एक आधे टाइप के क्वेश्चन में चलेगी ना, हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ पे ना मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, यस ना सर। मेरा टाइम कांस्टेंट है, तो मेरे पास हाँ एक ही जी। फॉर्मूला बचता है। और जो आप कह रहे हो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका, उसका एक बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। अगर आप सोचो एग्जाम्पल कर लिए बस मेरा काम हो गया, गलत। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। यू गाइस आर प्लेइंग विद योर करियर, दैट मींस। मैं तभी आपको एक दिन देता हूँ डाउट्स लेने के लिए और एक दिन सिर्फ पढ़ाता हूँ। उसका रीजन यही है कि आप लोगों को टाइम मिले। 1 घंटा जो मेरे को आप देते हो इसमें आप रिवीजन भी कर लो। बट अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करने वाले, सिर्फ बातें करने वाले हो, क्वेश्चन ही पूछने वाले हो, फिर तो कुछ होने नहीं वाला। यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आल्सो। सिंपल सा फंडा है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आएगा। हाँ जी सर। आज यही इतना ही करेंगे, कल करेंगे रिलेटिव स्पीड शुरू, थोड़ा एडवांस शुरू करेंगे कल से, तो कल की क्लास मिस मत करना। आज के लिए इतना ही है, ठीक है? कोई डाउट है तो प्लीज ले लो। एनी डाउट्स यू गाइस हैव तो प्लीज टेक इट।